زائرین اکرام، موجود ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس قید خانے کے پاس کہ جہاں امام کو ایک لمبے عرصے تک قید رکھا گیا۔ میں نے رات کو بیان کیا تھا کہ امام کو قید کرتے اور قید کر کے پھر امام کو کچھ عرصے کے لیے نظر بند کر دیتے، آزاد کرتے لیکن محدود آزاد کرتے۔ تو پھر آزاد کیوں کرتے جب رکھنا ہی نظر بند تھا؟ کچھ ایسے معجزات ہو جاتے، ایسے واقعات ہو جاتے کہ قید میں رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ مثلا ایک بار امام قید تھے اور اس علاقے میں قحط پڑ گیا، اور قحط پڑنے سے کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایک پادری آیا، نصرانی پادری، کرسچن عیسائی، وہ جس علاقے میں جاتا وہاں جا کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا، وہاں بارش آ جاتی۔ مسلمان جاتے دعائیں کرتے، بارش نہ آتی۔ کچھ علاقے کے لوگ عیسائی ہونا شروع ہو گئے کہ شاید وہ مذہب برحق ہے۔ جب ایسے حالات ہوں تو خطرہ اسلام کو ہوتا ہے، تو امام جو ہے وہ محافظ ہوتا ہے اسلام کا۔ تو متوکل پریشان ہوا کہ ایسے تو پھر ہماری حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اسلام نہیں رہے گا۔ تو وزیروں نے بتایا کہ اگر ایسی مشکل ہے تو مشکل کشا کے در پہ جاؤ، جو دین کے اصل وارث ہیں ان سے رجوع کرو۔ کہا کون ہے؟ کہا وہی ہیں جو تیری قید میں ہیں، ان کو بلاؤ۔ پتہ ان کو سب ہوتا ہے۔ بلایا گیا امام کو کہ اب اس موقع پر حل بتائیں۔ امام نے کہا کہ پورا شہر اکٹھا کریں ایک جگہ کے اوپر، اور اس پادری کو بھی بلائے۔ ایک میدان کا انتخاب ہوا، وہ پادری بھی آیا، اور اس پادری نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے لگا تو اس نے اپنے تھیلے سے ایک ہڈی نکالی باہر۔ امام نے فوراً جا کے کہا کہ یہ ہڈی اس کی ہاتھ سے لے لو، اور ہڈی ہاتھ سے لے کر ہڈی کو کپڑے کے اندر رکھ دیا۔ اب کہا پادری کو بھی دعا کرو۔ پادری نے دعائیں کی، کوئی بادل نہیں آیا، نہ کوئی بارش برسی، لوگ دیکھتے رہے۔ پھر وجہ پوچھی بھی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس کے ہاتھ میں تھی ایک نبی کی قبر کی ہڈی۔ وہ ہڈی کسی نبی خدا کی قبر سے اس نے نکالی تھی، اور قبر نبی کی خودی کا اعجاز یہ ہوتا ہے کہ جب اسے فضا میں بلند کیا جائے باران رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس پادری کا کمال کوئی نہیں تھا، یہ تو کمال اس ہڈی کا تھا۔ اب ہڈی کو ہم نے دفنا دیا ہے، اب کہتے ہیں دعا کرے، اب بارش نہیں برسی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ امام آپ دعا کریں، قحط تو ہے ہی صحیح، آپ دعا کریں۔ پھر امام نے ہاتھ بلند کیے، امام نے ہاتھ بلند کیے تو فوراً بادل آ گئے۔ جب بادل آئے تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ برسیں گے، مولا نے کہا نہیں، یہ مشرق کی جانب جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ چند لمحوں بعد بادل مشرق کی جانب چلے گئے۔ پھر بادل آئے، لوگوں نے کہا مولا یہ برسیں گے، کہا نہیں، یہ مغرب کی جانب جائیں گے، وہاں برسیں گے۔ بادل پھر ایسے چلے گئے۔ پھر بادل آئے، لوگوں نے کہا مولا یہ بارش برسائیں گے یہاں پر، کہا نہیں، یہ شمال کی جانب جائیں گے، وہاں پر بارش برسائیں گے، وہاں بھی بارش ہوگی۔ اسی طرح جنوب، پھر بارش آئے، بادل آئے تو مولا نے کہا یہ برسیں گے یہیں پر، اور ایسی بارش ہوئی کہ پورے علاقے کا قحط ختم ہو گیا، اور چاروں طرف کا قحط ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی اسلام کی فتح تھی، بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، اور اس واقعے کی فوری بات پھر امام کو قید میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ امام پھر اپنے گھر میں چلے گئے، لیکن گھر میں بھی امام کو نظر بند رکھا گیا۔ امام کہیں باہر نہیں جا سکتے تھے۔ جس جگہ ہم اترے ہیں گاڑیوں سے اور آگے گزر کے جاتے ہیں، تقریباً اسی طرح کے امام کا جو ہے وہ ایک فوجی پہرا تھا، اور اس فوج کے پہرے کے اندر امام تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ دور دراز سے، کوفہ سے، کربلا سے، مدینہ سے جو امام کے چاہنے والے امام سے ملاقات کے لیے آتے تھے، ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ لوگ یہاں پر پھر کسی اور غرض سے آنا شروع کر دیا، تجارت کی غرض سے یا کسی اور بہانے سے آنا۔ اور یہاں پر ایک سبزی فروش تھا جو سبزی اٹھا کر امام کے گھر جاتا تھا۔ لوگ اس سبزی فروش کے پاس جاتے کہ ہمارے مولا کو ہمارا سلام دینا اور مولا سے یہ مسائل پوچھنا۔ سبزی فروش نے سننے اور مولا کے پاس جانے اور سبزی کی ندا بلند کرنی۔ مولا نے آ کے سبزی خریدنے کے لیے آنا اور ساتھ ساتھ سبزی اٹھانا، اور ساتھ ساتھ کہنا اس کو کہ تو نہ بول، میرے فلاں بندے کو جا کے یہ کہنا کہ تیرا یہ جواب ہے، میرے فلاں بندے کو بتانا تیرا یہ جواب ہے، اور جواب لکھے ہوئے اس کے ہاتھ میں دے دینے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ تو مجھے بیان کرے میں تجھے بیان کروں، یہ لے، ان کے جواب لے، ان کو کہہ دے جائیں۔ کیسے چلے؟ امام اس انداز سے اپنی رہنمائی کرتے رہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہر زمانے کے امام کو اس زمانے کے جو استعمار تھا اس نے دور کیا، عوام سے قید کر دیا، شہید کر دیا،
जहर से शहीद किया, तलवार से शहीद कर दिया, असल वजह क्या बनी? हमारे अक्सर ये बच्चे पूछते हैं कि ये अहले बैत के साथ ही जुल्म क्यों, यानी कि इन्होंने इतना क्या नुकसान क्या किया था? असल इनकी दुश्मनी अहले बैत से नहीं है, इनकी दुश्मनी खुदा से है। और खुदा का एक निज़ाम है, खुदा ने अपना एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया है, इलाही निज़ाम का नफाज, कि मेरे नुमाइंदे ही ज़मीन पर हुकूमत करेंगे, मेरे नुमाइंदे ही मेरा निज़ाम नाफिज करेंगे। इनको वो निज़ाम कबूल नहीं है, ये उसके मुकाबले में, इलाही निज़ाम के मुकाबले में अपना गैर इलाही निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। और उसकी राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो वक्त का इमाम होता है या नबी होता है। तो ये उनको रोकने के लिए उम्मत और इमाम के दरमियान फासला पैदा करते हैं। और ये उम्मत और इमाम के दरमियान फासला पैदा इसी तरह करते हैं कि कभी ऐसी बातिल हुकूमतें बना दी, कभी इनको लगता है कि उम्मत को इमाम से कैसे करीब हो रही है कि इमाम के पास एक फदक है जिसकी आमदन करोड़ों रुपए है और दूर दराज से लोग इनसे पैसे मांगने आएंगे, ये खैरात करेंगे, लोग इनसे जुड़े रहेंगे, लिहाजा फदक ही छीन लो इनसे, ये इमाम को दूर करने के लिए। फिर जब ये गौर करते हैं कि अगर ये मसनद नशीन हुए तो लोग इनके पास जाकर सवाल पूछेंगे और हमारी हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी, इन्होंने हुकूमत छीन ली। इसी अंदाज से जब इनको शक होता कि लोग इनसे मिले नहीं, ये कैद में डाल देते। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जिनकी सल्लल्लाहु मुहम्मदिन वाले मोहम्मद, आपको एक लंबे अरसे तक कैद में रखा और कैद खाना इसी तरह का था जिस तरह ये ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, वो भी तकरीबन इसी में चलता कैद खाना कि इमाम उसमें एक लंबे लंबे अरसे सिर्फ रकू की शक्ल के अंदर कैद रहे, ना सीधे खड़े हो सकते थे ना सीधे लेट सकते थे, रकू की हालत के अंदर वहाँ पे कैद में गुजारनी, ना दिन का पता लगना ना रात का पता लगना। जुर्म क्या? वही औलाद अली होना कि अली के बेटे हैं, एक तो ये जुर्म है, दूसरा अल्लाह के नुमाइंदे हैं, ये जुर्म होना। और इनका मकसद था कि इलाही नुमाइंदों को उम्मत से दूर किया जाए और ये सिलसिला चलता आता रहा। हमारे एक एक करके 11 इमाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस उम्मत ने उनकी हिफाजत ना की और ये जो इस्तेमार था इन्होंने एक एक करके उन 11 को छीन लिया। अल्लाह ने अपनी 12वीं हुज्जत को रोक लिया। ये जो फिनमिना है गैबत का, कि गैबत क्या है, कल हमने जाए गैबत की भी ज़ियारत की है। मुझसे सवाल कर रहे थे कि जाए गैबत से क्या मुराद है, यहाँ से क्या इमाम कैसे गायब हुए। इमाम अलैहिस्सलाम की आने की निशानियाँ ये बहुत पुरानी हैं। इमाम ज़माना इमाम महदी के ज़हूर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद, ये जो इमाम के, क्योंकि इमाम कुरान में अल्लाह का वादा है कि मैं दुनिया को अदल इंसाफ से भर दूंगा और पूरी दुनिया में अल्लाह का निज़ाम नाफिज होगा, उसको इमाम ज़माना ही पूरा करेंगे। आज तक ऐसा पिछली पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सका। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका कि पूरी दुनिया में एक अल्लाह की इबादत हो, दूसरी कोई चीज़ ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़माना ही आएंगे कि 1,24,000 अम्बिया की मेहनतों का समर होगा। और इमाम ज़माना इमाम महदी ये जो टर्म है ये हर नबी ने यूज़ की है, हत्ता कि अम्बिया कराम जब जनाब जिब्राइल आते थे वही लेकर, तो अम्बिया कराम उनको कहते थे कि ए जिब्राइल तू तो खुश नसीब है, हर नबी की भी ज़ियारत करेगा और तू आखिरी कायम की भी ज़ियारत करेगा। जब तेरी मुलाकात आखिरी कायम से हो तो हमारा सलाम देना। जनाब यूसुफ ने सलाम कहा, जनाब अयूब ने सलाम कहा, जनाब खिज़र ने सलाम कहा। हर नबी ने अपने ज़माने में जनाब जिब्राइल को वक्त की हुज्जत के लिए सलाम भेजा कि वो जो आखिरी आएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसाफ से भरना है। तो ये बातें मौजूद थीं और रसूल खुदा की बड़ी सरी अहादीस मौजूद थी कि मेरे 12 नाइबीन हैं, मेरे 12 जानशीन हैं, मेरे 12 खुलफा हैं, मेरे 12 इमाम हैं और जिनमें से आखिरी महदी होगा। तो आप देख रही थी कि ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये 11वें हैं, तो इनके बाद इनका बेटा महदी होगा। तो जब इमाम ज़माना की विलादत होती है, इमाम का सिन बहुत छोटा था, 5 से 6 साल इमाम का सिन था और यहाँ पर इमाम हसन अस्करी की शहादत वाक़या हुई। मालूम था इनको कि इनका बेटा भी कोई है और इमाम की विलादत को भी रोकने के लिए इमाम अस्करी को मुसलसल उन्होंने कैद में रखा, लेकिन खुदा की इज़्ज़त से आपकी विलादत होती है। और फिर जब इमाम का जनाजा इमाम ही पढ़ाता है तो इन्होंने इमाम का जो घर जहाँ हमने रात गुजारी है वहाँ पर फौजें लगा कर बैठ गए कि देखो
अगर घर में किसी खातून के अलावा किसी मर्द बच्चे की भी आवाज़ आए तो फिर हया ना करना, दरवाजे तोड़ के अंदर चले जाना और मार देना। और कहते हैं कि इमाम ने अपने वालिद की शहादत पर भी गिरिया खामोशी से किया। वो आपको याद होगा कि लाहौर में भी अक्सर एक चुप ताज़िए का जुलूस निकलता है, वो 8 रबीउल अव्वल को चुप ताज़िए का। वो लोग पूछते हैं अब ये चुप ताज़िया क्या होता है? तो चुप ताज़िए से मुराद यही है कि इमाम ने चुप करके खामोशी के साथ वो ताज़ियत की, खामोशी के साथ वो गिरिया किया कि आवाज़ बाहर ना निकले। और फिर ऐन जब जनाजा इमाम का तैयार हुआ तो एक मजमे से इमाम ज़माना तशरीफ़ लाए और आपने आकर जनाजा पढ़ाई। रश था, मजमा बहुत ज़्यादा था, फौरी गिरफ्तार नहीं हो सके, लेकिन जनाजा पढ़ाते ही इमाम अपने घर की जानब चल रहे हैं। फौजें भी इमाम के पीछे आई हैं कि ये किधर जा रहे हैं। घर के अंदर जाकर वो जगह जो सरदाब थी वहाँ पहुँचकर हुक्म खुदा से इमाम पर्दा गैबत में चले गए। वो इमाम का जो गैबत थी वो गैबत सुगरा का ज़माना था, यानी कि इमाम बज़ाहिर गैब तो हो गए लेकिन अपने ज़माने में अपने ख़ास नायब से मुलाकात करते थे और लोग अपने सवाल उन तक पहुँचाते थे। इसी तरह वो जब नायब उनका अरसा था वो फौत होने लगे तो इमाम ने कहा कि अब तेरा नायब फला होगा, अब तेरा नायब फला होगा। 4 यके बाद दीगर इमाम ने अपने नायबीन बनाए और फिर जब चौथे नायब थे उसके बाद इमाम ने कहा कि अब अपना नायब ना बनाना, अब मैं गैबत कुबरा में जा रहा हूँ। अब क़यामत तक जो मेरे ज़हूर तक जो डायरेक्ट मेरी मुलाकात का दावा करेगा वो झूठा होगा। और अब भी इमाम की मुलाकात लोगों से होती है लेकिन दावा कोई नहीं करता, दावादार झूठा है। मुलाकात ऐसा नहीं कि मुलाकात ही नहीं इमाम की हो, मुलाकात आदमी लोगों की होती है लेकिन दावा कोई ज़िंदगी में अपना नहीं करता। तो ये ज़माना जो चल रहा है ये इमाम की गैबत कुबरा का ज़माना है। इसमें क्या मुराद है कि इमाम मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, सही व सालिम हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हर साल इमाम हज पर भी तशरीफ़ लाते हैं और इमाम के बारे में है कि हर शब जुमा करबला भी तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं सकते। अल्लाह ने अपनी 12वीं हुज्जत को ज़हूर करने से रोक दिया कि पहली 11 हुज्जतें जो आईं इस दुनिया ने उनको पहचान ना सकी, उनकी हिफाजत न कर सकी। अब 12वीं हुज्जत जो है ये अल्लाह की मर्ज़ी से आएगी। हम दुआ करते हैं कि इमाम की ज़हूर में ताजील हो, जल्दी इमाम का ज़हूर हो, लेकिन हम एक्चुअली असल में तैयार भी नहीं हैं। हमारी क्या हालत है कि हम कोई तैयार हैं? बिल्कुल भी हम तैयार नहीं हैं। हम कहते तो हैं हर नमाज के बाद कि मौला ज़हूर फरमाए, अल्लाह उनकी ज़हूर में ताजील फरमा, लेकिन हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। एक ईरानियों ने जो है ये बनाई, एक ख्वाब को उन्होंने एक हकीकत में उन्होंने एक बनाया कि एक बंदा जिसको ख्वाब आता है कि घर की बेल बजी और वो उसने फ़ौरन देखा और स्क्रीन से देखा तो पता लगा कि बाहर जो है वक्त के इमाम खड़े हैं और कहा कौन? कहा मैं तेरे वक्त का इमाम हूँ, अंदर मुझे बुलाओ। कहा मौला 1 मिनट रुके। उसको ख्याल है कि इमाम ने अंदर आना, घर में कुछ जरा ना जो लहो वला वाले आलात हैं, कोई टीवी विसियार चीज़ें, ये चीज़ें दूर करूँ कि इमाम को यहाँ बिठाना है। फिर इमाम ने बैल दी कि मुझे अंदर बुलाओ। कहा थोड़ा सा इंतज़ार करें, चीज़ें सट सुट करते रहे और थोड़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खोला तो इमाम रोते हुए गली की नुक्कड़ मुड़ रहे थे और कहा था कि मैंने हर घर का दरवाज़ा नॉक किया, मुझे किसी ने कबूल नहीं किया, कोई तैयार ही नहीं कि मुझे 1 मिनट के लिए बिठा दे। सही कहा। तो असल में हमारी हालत तो ये है कि हम तैयार नहीं हैं। इमाम अली के बेटे हैं, जब आएंगे तो अदल को पुर करेंगे। इमाम आकर हकीकी अदल नाफिज करेंगे। इमाम आकर कहेंगे कि ये जो तेरी ज़ौजा तेरे निकाह में है ये दुरुस्त नहीं है, तलाक दे। ये जो तेरे बैंक बैलेंस में इतने करोड़ों पड़े हैं ये सब के सब गलत हैं, इनको बाहर फेंक। ये जो तूने महल तामीर किया है ये सारा काबिज है, इसको छोड़। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है चीज़ें। यानी कि हमारी हालत उसकी नहीं है कि हम फ़ौरन कहें। हम कहने को तो कह देंगे कि मौला जब आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम तो हाँ कर देंगे, हम कह देंगे मौला हाजिर हैं। लेकिन जो पहले 11 इमामों की प्रैक्टिस चल रही है उसमें तो लोगों ने ऐसा नहीं किया। जब इमाम अली ने नाफिज किया वो भी हम जैसे लोग थे ना, कि जब लोगों को इमाम ने कहा कि कल सब अपनी मौला को इसरार किया लोगों ने कि मौला हम जहाद करना चाहते हैं, जहाद करें, आप क़याम करें। इमाम ने कहा अच्छा कल सर टेंड करवा के आना, बाल उतरवा के आना। अगले दिन बड़ी बड़ी पग्गे पहन के आ गए। इमाम ने पग एक की उतारी तो नीचे बाल थे। इमाम ने कहा जो मेरी खातर थोड़े से बाल नहीं उतरवाता वो सर उतरवाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक गिरोह आया और आकर इमाम को कहा कि मौला जहाँ हम आए हैं वहाँ आपके बहुत चाहने वाले हैं, आप क़याम क्यों नहीं करते?
अभी जो आप दरस दे रहे हैं, हज़ारों लोग तो आपके पास पढ़ने आते हैं, तो आप क्याम करें, हुकूमत सारी आपकी हो जाए, सारी दुनिया आपकी चाहने वाली है। इमाम ने कहा अच्छा क्याम करूं, सारे मेरे चाहने वाले हैं, सारे मेरी बात मानते हैं, एक काम कर, ये तंदूर रोशन है, आग जल रही है, रोटियां पक रही थी उसमें, इसमें छलांग लगा दे। उसका बोला हम तो आग से बचने के लिए आपकी तरफ आए हैं, आप तो खुद आग में फेंक रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। मौलाना का अच्छा ठीक है। फिर एक को आवाज़ दी अपने को, आओ आग में छलांग लगाओ। उसने बगैर किसी बात के आग में छलांग लगा दी। इमाम ने कहा ढक्कन ऊपर दे दो, तंदूर के ऊपर ढक्कन दे दिया। इमाम फिर पूछने लगे सुनाओ कैसे इलाके के हालात हैं, बातचीत करने लगे। उनकी तवज्जो उधर ही, तो वो जो बंदा रोस्ट हो गया होगा, जल गया होगा, उसका क्या हाल होगा। तो थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने बात काटी इमाम की कि मौला उसका तो हाल देखे जिसको आगे फेंका हुआ है। कहा अच्छा, तंदूर उठाया तो वो तस्बीह पढ़ रहा था और आग गुलजार बन गई। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु फिर इमाम ने कहा कि अच्छा अब ये बताओ इस जैसे कितने हैं कि जिसको मैं कहूँ छलांग लगा दे और लगा दे, इस जैसे कितने हैं। कहा बोला इस जैसा तो कोई भी नहीं है। कहा फिर जब इस जैसे 4 हो गए ना, मैं फिर खरूज भी कर लूंगा, क्या भी कर लूंगा। यानी कि इताअत गुजार लोग नहीं थे, बज़ाहिर चाहने वाले, बज़ाहिर नारे बुलंद करने वाले बहुत थे, एक्चुअल इताअत गुजार नहीं थे। शुरू से लेकर आखिर तक तशय्यो के पास हमेशा इताअत का फुकदान नहीं रहा, लीडरशिप का फुकदान नहीं रहा, बल्कि इताअत का फुकदान रहा। इताअत ही हमेशा कम रही है और ये पूरी उम्मत का ही मसला है, इताअत की ही कमी है। खुदा ताला हमें मुती और फरमाबरदार बनाए, अपने ज़माने के इमाम के लिए हमें तैयार होने की तौफीक अता फरमाए। अभी हम कैद खाने की ज़ियारत को जा रहे हैं। इमाम एक लंबे अरसे तक यहाँ पर कैद रहे, इमाम की महल इबादत भी है, आपने यहाँ पर इबादत भी की, तो मैं ज़ियारत पढ़ाऊँगा, फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे।